Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Before this, we have studied the excretory role of kidney. Apart from excretion, kidney also has a role in osmoregulation. Osmoregulation means maintenance of water and solutes in the body. As we know, kidney produces different concentrations of urine depending on the availability of water. If water is abundantly available in the body, if we have drank a lot of water, kidney produces large volume of dilute urine. However, if we have drank little water, if water is in shorter supply in the body, then kidney produces little concentrated urine. This is our common observation. Kidney produces different concentration of urine depending upon the availability of water. This clearly shows that kidney function as an osmoregulatory organ along with its excretory role of nitrogenous waste. Then the next topic in our book is kidney problems and cures. Sometimes unusual situations may arise in the function of the kidney due to factors originating within the kidney or outside the kidney. These cause serious kidney diseases. We will discuss two of such situations. Number one, kidney stones. Stony materials may found in the kidney, and these cause urinary obstruction and generally complicated by infections. किडनी में स्टोन बनाने वाला मटेरियल भी प्रोड्यूस हो सकता है. स्टोन बनने से यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, यूरिन के फ्लो में रुकावट पैदा होगी. इसके अलावा मजीद पेचीदगी क्या पैदा हो सकती है, इन्फेक्शन हो जाएगी. इन्फेक्शन से रीनल फेलियर, किडनी फेल भी हो सकते हैं. तो पहली बात उसने ये लिखी है, stony material are found in the kidneys and these cause urinary obstructions and generally complicated by infections. What kind of composition these stones have? These stones have specified chemical nature. There are three types of stones. Calcium oxalate stone, number one. Calcium phosphate stone, number two. And uric acid stone, number three. Three types of stone can be found in the kidney. Calcium oxalate stones. The chances of formation of calcium oxalate stones may be 70%. 70% स्टोन जो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स में हो सकते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन होते हैं. कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स के चांसेस 15% हो सकते हैं और यूरिक एसिड के स्टोन बनने के चांसेस 10% होते हैं. The chances of calcium oxalate stone is 70% and that of calcium phosphate and uric acid is of 15 and 10% respectively. All these are salts. Calcium oxalate, calcium phosphate, uric acid, these are salts
which are precipitated out during urine formation and accumulate later to form the stone. यूरिन फॉर्मेशन के दौरान ये सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं और फिर वो कहीं भी डिपॉजिट होकर जमा होकर स्टोन बन सकते हैं. What are the causes of stone formation? Stones are formed due to metabolic diseases. For example, hypercalcemia. Hypercalcemia mean high level of circulating calcium in the blood because of any metabolic defect. बसौकात बॉडी के अंदर किसी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की वजह से कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो सकता है ब्लड में. दिस इज कॉल्ड हाइपरकैल्सीमिया, हायर लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैल्शियम इन द ब्लड. देन hyperoxaluria, higher level of oxalate in the blood, and this may contribute in the formation of calcium oxalate stones. Similarly, oxalates are found in some green vegetables like tomatoes. Therefore, they may be the cause of hyperoxaluria. तो अभी तक हमने यहां पर ये पढ़ा, stony material are found in the kidneys and these cause urinary obstruction and generally complicated by infections. किडनी में स्टोन बन सकते हैं जिसकी वजह से यूरिन के फ्लो में रुकावट पैदा हो सकती है और मजीद पेचीदगी पैदा हो सकती है इन्फेक्शन की वजह से. These stones have specified chemical nature. इन स्टोन की खास केमिस्ट्री होती है. मिसाल के तौर पर there are 3 types of kidney stones. Calcium oxalate stone, 70% stones कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं. कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन 15% स्टोन बनने के चांसेस जो हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन के होते हैं, जबकि थर्ड यूरिक एसिड स्टोन जो है वो 10% उसके चांसेस हो सकते हैं. ये सारे कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, these are the salts which precipitate during the formation of urine and they later accumulate to form stone. Then what are the causes of stone formation? Stones are usually formed due to metabolic diseases. किसी metabolic problem की वजह से, किसी metabolic disease की वजह से stone formation होती है. 2 कंडीशन का जिक्र किया हुआ, हाइपरकैल्सीमिया, high level of calcium in the blood, and hyperoxaluria, high level of oxalate in the blood. इसके अलावा green vegetables, tomatoes may have high level of oxalates and they may cause hyperoxaluria, जिसकी वजह से calcium oxalate के स्टोन बन सकते हैं. Then treatment of kidney stones. Cure. Kidney stones have been removed generally by surgery. जो रवायती तरीका था स्टोन को रिमूव करने का वो सर्जरी थी, लेकिन आजकल किडनी को रिमूव करने के लिए सर्जरी नहीं की जाती. आजकल lithotripsy is used, which is a non-surgical removal of kidney stone. In this technique, stones are broken down in the kidney.
Presently, lithotripsy is used for non-surgical removal of kidney stone. In this, it is a technique that is used to break up stones that form in the kidney, ureter, or gallbladder. There are several ways to do it, but the most common is extracorporeal shock wave lithotripsy. So what is lithotripsy? Lithotripsy is actually non-surgical removal of kidney stones. By this technique, stones are broken down in the kidney, ureter, or bladder. The most common way of lithotripsy is extracorporeal shock wave lithotripsy. इस टेक्निक में क्या किया जाता है? High concentration of X-rays or ultrasound are directed from the machine outside the body to the stone inside. एक मशीन से हाई कंसंट्रेशन एक्स-रेज की या अल्ट्रासाउंड रेज की स्टोन के ऊपर डाली जाती हैं. स्टोन को शॉक पहुंचाया जाता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्स-रेज का या अल्ट्रासाउंड रेज का. The shock waves break the stone in tiny pieces or into sand, which are passed out of the body in the urine. So what is the treatment of, what is the cure of kidney stone? हमने ये बात पढ़ी कि previously kidney stones are removed by surgery, but these days surgery is not carried out to remove a stone in the kidney. In present days, lithotripsy is used for the removal of stone from the kidneys. It is non-surgical removal of stone from the kidney, ureter, or urinary bladder. In this technique, X-rays or ultrasound rays are directed from a machine outside the body onto the kidney stones. The shock waves break the stone into tiny pieces or into sand, and this sand is then removed, passed out of the body in the urine. Next है renal failure. Various pathological as well as chemical factors may progressively destroy the nephron, particularly its glomerular part. बसौकात किडनी के नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खास तौर पर उसका ग्लोमेरुलस प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय हो जाता है. उसकी वजह पैथोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है, किसी काजल ऑर्गेनिज्म की वजह से, किसी पैथोजन की वजह से, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन, ये वजह बन सकते हैं. कोई पैरासाइट वजह बन सकता है, पैथोजन वजह बन सकता है. दीज आर पैथोलॉजिकल फैक्टर्स which are due to some organism. And chemical factor, किसी ड्रग की वजह से, किसी मेडिसिन की वजह से, किसी भी केमिकल की वजह से अगर नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ये केमिकल फैक्टर कहलाएगा. Various factors of pathological and chemical nature may progressively destroy the nephron, particularly its glomerular part. अगर ऐसा हो जाए, नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो किडनी will not remove urea and other waste from the body. As a result, the level of urea and other waste will rise in the plasma.
इसलिए उसने लिखा दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द प्लाज्मा लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस बेस। अब अगर प्लाज्मा के अंदर नाइट्रोजनस बेस यूरिया वगैरह बढ़ेगा तो उससे मजीद पेचीदगियां पैदा होंगी, जैसा कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, अनीमिया, रेड ब्लड सेल की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो रीनल फेलियर में हमने ये पढ़ा कि वेरियस फैक्टर ऑफ पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर can progressively destroy the nephrons, particularly its glomerular part. As a result, kidney will not remove urea and other nitrogenous waste from the body, and level of these waste will increase in the plasma. This may increase other complications such as increased blood pressure and anemia. अब इसका ट्रीटमेंट क्या? रीनल फेलियर का डायलिसिस, that is cleaning of blood. जब ब्लड में से यूरिया और अदर वेस्ट किडनी नहीं निकाल पा रहा तो ब्लड में से वो वेस्ट आर्टिफिशियली निकालने की कोशिश की जाती है। इन क्रोनिक रीनल फेलियर, जो पुराना किडनी फेलियर हो, द फंक्शन ऑफ द किडनी इज कंप्लीटली लॉस्ट and is unable to remove nitrogenous waste. क्रोनिक किडनी फेलियर में, क्रोनिक रीनल फेलियर में किडनी का फंक्शन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है और वो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव नहीं करती। टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, particularly urea, the blood of the patient is treated through dialysis. पेशेंट का ब्लड डायलिसिस के जरिए ट्रीट किया जाता है। और डायलिसिस मीन क्लीनिंग ऑफ ब्लड either by passing it through the artificial kidney or by filtering it within the abdomen. Dialysis mean cleaning of blood, और ये ब्लड की क्लीनिंग दो तरीकों से हो सकती है। या तो ब्लड को आर्टिफिशियल किडनी में से गुजारा जाता है जिसको डायलाइजर बोलते हैं, या एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर ही ब्लड को फिल्टर किया जाता है। The waste and excess water are removed during this treatment, just as the healthy kidneys do. इस प्रोसेस में वेस्ट और एक्सेस वाटर बिल्कुल उसी तरीके से ब्लड से निकाले जाते हैं जिस तरह से हेल्दी किडनी करती है। There are two types of dialysis: hemodialysis and peritoneal dialysis. इनमें क्या फर्क होता है? प्रिंसिपल दोनों का एक ही है, फर्क क्या है वो हम देखते हैं। हेमोडायलिसिस मीन क्लीनिंग द ब्लड, आपकी बुक के मुताबिक। In this procedure, blood is circulated through a machine which contains a dialyzer, also called artificial kidney. पेशेंट के ब्लड को एक मशीन के जरिए डायलाइजर में से गुजारा जाता है। उस डायलाइजर को आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। आप देख सकते हैं ये आर्म जो है वो पेशेंट का है। पेशेंट के ब्लड को ये ट्यूब के जरिए बाहर निकाला गया, और ऐसा करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम चाहिए। वो ब्लड को डायलाइजर में से गुजारते हैं। ये डायलाइजर है। ये सिंपल सी एक प्रिंसिपल दिखाया गया है उसके वर्किंग का। एक्चुअली तो ऐसा नहीं होता। दिस डायलाइजर इज अ टैंक। आप ये समझे कि एक टैंक मा चीज है, उसके दो स्पेसेस हैं, और दो स्पेसेस के बीच में दरमियान में मेम्ब्रेन लगी हुई, सेमी परमिएबल
मेम्ब्रेन। उस स्पेस एक तरफ, वो जो टैंक है हैविंग टू स्पेसेस, उसके एक तरफ से ब्लड गुजरता है और दूसरी तरफ से डायलिसिस फ्लूइड। ये इधर से ब्लड गुजर रहा है और इस साइड से डायलिसिस फ्लूइड। ब्लड के अंदर मौजूद जो वेस्ट होते हैं, जो एक्सेस वाटर है, वेस्ट है, यूरिया वगैरह, वो मेम्ब्रेन में से होते हुए डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते हैं और डायलिसिस फ्लूइड को बाहर निकाल दिया जाता है। यूं एक तरफ से ब्लड गुजरता जाता है, यूं ब्लड यहां से आया, इस स्पेस में से गुजरा, वेस्ट बाहर निकल गया और दिस क्लीन ब्लड इज रिटर्न बैक टू द पेशेंट बॉडी। और दूसरी तरफ से डायलिसिस फ्लूइड गुजरता है जिसके अंदर ब्लड से वेस्ट शामिल होते हैं और ये जो वेस्ट डायलिसिस फ्लूइड होता है इसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसी चीज को हम ये देख सकते हैं। पेशेंट दिखाया गया, लॉन्ग ट्यूबिंग है, ट्यूब्स हैं। पेशेंट के ब्लड को पंप्स के जरिए डायलाइजर में से गुजारा गया। ये डायलाइजर है। अब इस डायलाइजर में ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स व्हाइट में ट्यूब्स दिखाई गई है। इन ट्यूब्स की जो वॉल्स हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी हुई। ट्यूब्स के बाहर डायलिसिस फ्लूइड है। यूं दो स्पेसेस हो जाते हैं, एक स्पेस ये वाला और एक स्पेस ये वाला जो ट्यूब के अंदर है। ट्यूब में से ब्लड गुजरेगा, बाहर ट्यूब के बाहर डायलिसिस फ्लूइड है। ब्लड में से वेस्ट निकलकर डायलिसिस फ्लूइड में जाते हैं और वो डायलिसिस फ्लूइड जो है वो वक्फे वक्फे से बाहर निकाल दिया जाता है और जो ब्लड जो होता है वो दूसरी तरफ से क्लीन ब्लड उसको वापस पेशेंट की बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है। हमारी बुक वाला लिखता है, हेमोडायलिसिस मीन क्लीनिंग द ब्लड। In this procedure, blood is circulated through a machine which contain a dialyzer. उस मशीन में डायलाइजर है। उस डायलाइजर को आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। डायलाइजर हैज अ टू स्पेस सेपरेटेड बाय थिन मेम्ब्रेन। आप ये डायलाइजर है, टू स्पेस, एक ये वाला रेड और एक ये वाला जो पर्पल सा है। दोनों के दरमियान जो है सेपरेशन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। डायलाइजर हैज टू स्पेसेस सेपरेटेड बाय थिन मेम्ब्रेन। Blood passes from the one side of the membrane and dialysis fluid on the other. जैसे मैंने बताया कि डायलाइजर के एक साइड जो स्पेस की डायलाइजर है उसके एक तरफ से ब्लड गुजरता है, दूसरी तरफ से डायलिसिस फ्लूइड, दरमियान में selectively permeable membrane. The waste and excess water pass from the blood through the membrane into the dialysis fluid. जब यहां से ब्लड गुजरता है तो ब्लड में से वेस्ट और एक्सेस वाटर मेम्ब्रेन में से होते हुए डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते हैं और ब्लड जो है वो क्लीन होता जाता है। डायलाइजर क्या है? डायलाइजर इज अ किडनी मशीन दैट वर्क्स इन द सेम प्रिंसिपल एज इन अ किडनी for the removal of nitrous waste and excess water from the blood. What is hemodialysis? Hemodialysis is a cleaning of blood by passing the blood through artificial kidney called kidney machine. This kidney machine has a dialyzer. Dialyzer is a tank, has two spaces separated by membrane. Blood passes from one side of the membrane and dialysis fluid from the other side. The waste and excess water from the blood passes into the dialysis fluid through selectively permeable membrane. Then next step, peritoneal dialysis.
Peritoneal dialysis works on the same principle as that of hemodialysis. जैसे मैंने पहले भी बताया कि दोनों के काम करने का प्रिंसिपल एक है, लेकिन इन पेरिटोनियल डायलिसिस blood is filtered in the abdomen. Abdomen has a cavity that is called peritoneal cavity, lined by thin epithelium called peritoneum. Abdominal cavity, वो जो हम पेट बोलते हैं, जिसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे, खासतौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम, वो जो कैविटी है दैट इज एब्डोमिनल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, उसकी लाइनिंग में, उसकी अंदर वाली सरफेस पे मेम्ब्रेन है, एपिथेलियम है। मेम्ब्रेन का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, एपिथेलियम है, उस एपिथेलियम को पेरिटोनियम बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी जिसको पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं, और ये जो लाइन जो नजर आ रही है दिखाई है, दिस इज पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ये लेबलिंग मेरा ख्याल है कि ये है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, इसमें एपिथेलियल सेल्स हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं एपिथेलियल सेल की बैक साइड पे। डायलिसिस फ्लूइड, इस प्रोसेस में डायलिसिस फ्लूइड, जो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है, वो एक छोटी सी ट्यूब है जिसे कैथेटर कहते हैं। ये कैथेटर, इस कैथेटर के जरिए एब्डोमेन में डाला जाता है। इस एब्डोमेन के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डायलिसिस फ्लूइड डाल दिया गया एक खास वक्फे के लिए। अभी जो डायलिसिस, इसके बाद ये जो थिन मेम्ब्रेन होती है, सॉरी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, एपिथेलियम है, इसकी बैक साइड पे जो ब्लड वेसल्स हैं, वहां से वेस निकल कर डायलिसिस फ्लूइड में जमा होते रहते हैं, और फिर उस डायलिसिस फ्लूइड को वक्फे से बाहर निकाल दिया जाता है। ये बात आपकी बुक में लिखी होगी किस तरह से। पेरिटोनियल डायलिसिस वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, except that abdomen has a cavity called peritoneal cavity, lined by thin epithelium called peritoneum. Peritoneal cavity is filled with the dialysis fluid that enters the body through a catheter. एक छोटी सी ट्यूब के जरिए, कैथेटर के जरिए ब्लड को, डायलिसिस फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी में डाला जाता है। Excess water and waste passes to the peritoneum into the dialysis fluid. जैसे मैंने बताया कि this peritoneum contain blood vessels, उन ब्लड वेसल से के ब्लड से एक्सेस वाटर और वेस्ट पेरिटोनियम में से होते हुए डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स अ डे, और इट इज यूज्ड आफ्टर किडनी फेलियर, and dialysis is done again and again until the matching donor kidney is transplanted. क्योंकि डायलिसिस जो है ये टेम्पोररी मेजर है। कुछ पेशेंट को वीक में एक दफा, कुछ को 2 दफा, कुछ को मंथ में 1 दफा डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये है टेम्पोररी मेजर। और परमानेंट ट्रीटमेंट वही है जिसको किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं। यानी डायलिसिस उस वक्त तक किया जाता है जब तक किडनी को ट्रांसप्लांट ना कर दिया जाए। ये पेरिटोनियल डायलिसिस को मुख्तलिफ स्टेप्स में दिखाया गया। पेशेंट, पेरिटोनियल कैविटी containing
डायलिसिस फ्लूइड, ये डायलिसिस फ्लूइड इस तरफ से कैथेटर के जरिए एब्डोमेन में एंटर हुआ, कुछ देर इसके अंदर मौजूद रहा, वेस्ट जो ब्लड में थे थोड़े थोड़े करके वो डायलिसिस फ्लूइड में निकलते रहे, और फिर उस डायलिसिस फ्लूइड को वक्फे वक्फे से बाहर निकाल दिया गया, और ये काम सेवरल टाइम्स रिपीट करना पड़ता है। देन आखिर में किडनी ट्रांसप्लांट। जैसे मैंने बताया कि डायलिसिस में बी यूज द टेम्पोररी मेजर, ये एक आर्जी तदबीर है। इन हाई डिग्री किडनी फेलियर, जिसको कहते हैं यूरेमिया, द एंड स्टेज रीनल डिजीज। व्हाट इज यूरेमिया? एंड स्टेज रीनल डिजीज, हाई डिग्री रीनल फेलियर, अखीर दर्जे की डायलिसिस, वो डिस्ट्रक्शन ऑफ नेफ्रॉन हो चुकी। इन हाई डिग्री रीनल फेलियर, also called uremia or end stage renal disease, dialysis cannot be done, hence thus the surgical transplantation of matching donor kidney is the only option left for as the permanent treatment. वो कहता है कि अगर हाई डिग्री किडनी फेलियर हो, एंड स्टेज किडनी डिजीज हो जिसको यूरेमिया बोलते हैं, तो फिर उस वक्त डायलिसिस से गुजारा नहीं है, डायलिसिस नहीं किया जा सकता। उस वक्त वाहद हल यही रह जाता है कि एक ऐसा किडनी ढूंढा जाए जिसकी केमिस्ट्री पेशेंट के बॉडी केमिस्ट्री से मैच करे। ब्लड ग्रुप्स के साथ साथ कुछ दूसरे टेस्ट भी दिए जाते हैं मैचिंग के लिए। वो जो मैच किडनी होता है उसको पेशेंट के सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, पेशेंट के यूरिनरी सिस्टम के साथ अटैच कर दिया जाता है, और वो अपना काम संभाल लेता है। इसको किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो ये जो सेक्शन था एक्सक्रीशन वाला वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमने पढ़ा वो जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक्स थे। मुख्तलिफ बुक्स पे हमें मुख्तलिफ तरीकों से मिलेगा, हम अपनी बुक्स के हिसाब से इसको याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।